اس وقت حالات کچھ اور تھے، پاکستان پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں، IMF کا پروگرام معطل ہو چکا تھا، دنیا اپ ان دیئر آرمز تھی کہ پاکستان کو سزا دینی ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر قوت بن گیا ہے۔ ہم نے $5 ارب کی ان کو پیکیج بھی آفر کیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جرأت کا مقابلہ کیا اور اس $5 ارب کو ٹھکرا کر پاکستان کو ناقابل تسخیر ایک یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے ملک کو ایک مضبوط قوت بنا دیا۔ وہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، میں اس فیصلے میں ان کے ساتھ تھا۔ 28 مئی کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو آج ہے اس میں نیشنل ڈیفنس کالج تھا، اور جنرل جہانگیر کرامت نے پریزنٹیشن دی تھی کہ ہمارے پاس کون سے آرمامنٹس ہیں اور ہمارے پاس کون سی ڈیفنس کی چیزیں ہیں اور ہمارے نیبر کے پاس کتنی چیزیں ہیں۔ ہمارا تو اس وقت بھی بہت بڑا فرق تھا، اگر وہ ہم نہ کرتے تو we would have been exposed to any danger in future, particularly after 9/11۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتی، 9/11 کے بعد جب 11 مہینے دونوں ملکوں کی فوجیں آئی بال ٹو آئی بال کھڑی رہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کا نیبر آپ کو چھوڑتا؟ یہ ایک وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور میاں نواز شریف صاحب کی جرأت کہ وہ اس وقت جو فیصلہ ہوا 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 جب چلے، تو پھر دشمن کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ہم پنگا لیں گے تو یہ بھی کاؤنٹر ہمارے اوپر وہی کام کر سکتے ہیں، تو ان کو جرأت نہیں ہوئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد انڈیا کا پرائم منسٹر چل کے بائی بس پاکستان میں آیا اور اس نے کہا، پہلی دفعہ پاکستان کی ایگزسٹنس کو مینار پاکستان کے نیچے قبول کیا، اور اس کے بعد یہ کہا، وہ آج بھی ہسٹورک ڈاکومنٹ موجود ہے، کہ ہم تمام مسائل افہام و تفہیم نیگوسیشن کے ذریعے حل کریں گے بشمول کشمیر ایشو کے۔ اب یہ we just lost that opportunity۔ اور اس کے بعد ہم نے کارگل کا پنگا لے لیا، اور اس کے بعد we know the I don't want to just repeat it, I want to come on the main subject، کیونکہ کس وقت تو بحث ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ڈیویلیویشن کا مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور میں اس کو مدر آف اکنامک ایول سمجھتا ہوں، سمجھتا تھا، سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا جب تک مجھے کوئی آگے کنونس نہ کرے کہ یہ نہیں ہے۔ اور قریباً regardless of the reasons and the little bit blame game، ہر ایک اس پہ اتفاق کر رہا ہے کہ ایک سٹیبل کرنسی ہی کسی ملک میں ترقی کا باعث بنتی ہے۔ یہ تمام جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ بیوقوف ہیں، ان کی 40 سال سے ایک ہی کرنسی کی ویلیو چل رہی ہے۔ ان کا آئل ریونیو جو آتا ہے $17 کا بھی پر بیرل رہا ہے اور $130 کا بھی پر بیرل رہا ہے، لیکن اس کی کرنسی کے جو ریٹس ہیں ویزاویز دی ڈالر اور اسٹرلنگ وہ تو نہیں بدلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پہ اگر آپ ماضی دیکھیں گے، اور وہ 69 جو ڈالر تھا، جب ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، I'm using the word crack down, I was given the responsibility, I got the finance ministry as well first time in 1998, 6 November 1998 کو the $69 within a matter of few weeks came to 51.80 52، اور اس کے بعد کو والے دن تک وہ 52 روپیز تھا، and it was totally stable۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 2013-14 پہ آ جاتے ہیں، فاسٹ فارورڈ، کوک کے درمیان ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، ایک ملٹری ڈکٹیٹر رہا، پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، پھر کیا ہوا؟ آنن فانن 100 پہ قریباً چھوڑا پچھلی گورنمنٹ نے، اور دیکھتے دیکھتے وہ چند مہینوں میں 100 اوپن مارکیٹ 114 اور انٹر بینک مارکیٹ 111 پہ چلا گیا۔ ایک پنڈی کے سیاست دان نے چیلنج کیا حکومت کو کہ اگر یہ 100 پہ کے قریب آ جائے تو میں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا ساری زندگی کے لیے۔ وہ پارٹنر تھا ہمارے ساتھی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کی جماعت کا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ 100 پہ آیا، اور 4 سال اس کے بعد 2014 آنورڈز پاکستان کرنسی ریمین سٹیبل ایٹ 104.50 اراؤنڈ دیٹ، جو چند پیسے اوپر چند پیسے نیچے۔ آج آپ ابھی 12 دسمبر 2017 بلومبرگ ابھی کریں، آپ کے پاس فون موجود ہیں، کیا لکھتا ہے بلومبرگ اس وقت؟ پاکستان کرنسی ہیز بین مور اسٹیبل روپی ان دی ساؤتھ ایشیا سنس 2014 ایکسپٹ ریسنٹ سلائڈ۔
मैंने एंड ऑफ अक्टूबर में मैंने मिनिस्ट्री का चार्ज छोड़ा और मैंने फॉर्मली 21 नवंबर को आई रिजाइंड। उसके बाद ये दिसंबर में स्टार्टेड मूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे एक भाई ने कहा कि जी इंटरवेंशन, उस वक़्त मैं एज वज़ीर ख़जाना, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड इनका एक था उस वक़्त, क्लेम कह लें, ब्लेम कह लें, मैं ब्लेम गेम में पढ़ना तो नहीं चाहता, इसका जवाब देना ज़रूरी है कि जी मैं $2 बिलियन अ मंथ मैं इंटरवीन करता हूँ मार्केट में टू कीप द 104 पे रखने के लिए। भाई आप 42 महीने हुकूमत में रहे हैं, तो आपके तो मेरे $84 बिलियन के रिजर्व होने चाहिए, आपने तो इंटरवीन नहीं किया बकौल आपके। योर इंफॉर्मेशन इज टोटली पोलिटिकल, बायस, रॉन्ग, एंड यू कैन वेरीफाइड विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1। अब जहां तक सेंट्रल बैंक का ताल्लुक है, टू दी सर्टन डिग्री दे डू इंटरवीन, हमारा भी करता है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। उसे इतना पैसा नहीं है कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान की तरह इंटरवीन करे। मैं अपने भाई को ये चैलेंज दे के कह रहा हूँ कि ये ज़रा चेक करें, सवाल दें कि 2013-17 में कितनी इंटरवेंशन स्टेट बैंक ने की, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, और 2018-22 बिफोर दे लेफ्ट द गवर्नमेंट कितनी हुई। दे विल बी अमेज्ड टू सी कि इनकी इंटरवेंशन ज़्यादा थी जब इन्होंने 180 से 152 पे लाए। तो भाई प्लीज़ बात करने से पहले आप फैक्ट्स को वेरीफाई कर लिया करो। यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट अ क्वेश्चन, गेट द आंसर फ्रॉम स्टेट बैंक के 2013 से 2018 या 17 कितनी इंटरवेंशन की स्टेट बैंक ने, नॉट द गवर्नमेंट, एंड 2018 से 2022 कितनी, आपको पता चल जाएगा। और फिर आपका ये कहना कि जी 2 बिलियन, ये इन्होंने कैंपेन की हुई थी मुल्क में कि $2 बिलियन अ मंथ इसहाक डार इंटरवेंशन करके इसको 104 पे रखा हुआ। ओ भाई आपने 42 महीने इंटरवेंशन नहीं की तो 84 बिलियन रिजर्व तो वो होने चाहिए। तो दैट वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू। आई डोंट ब्लेम माई ब्रदर, बिकॉज दिस वंस यू, और हमें आदी हो गए हैं कि हमने झूठ बोलने जो सुनते हैं उसको बगैर वेरीफाई करके उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका हल क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिवैल्यूएशन तबाहकुन चीज़ है। बुकिश एकेडमिक, मेरी 25 साल से लड़ाई होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इसी सब्जेक्ट के ऊपर। दे कंसिडर मी एनिमी ऑफ डिवैल्यूएशन एंड आई एम हैप्पी टू हैव दैट टाइटल फ्रॉम देम। उसकी वजह यह है कि ये आपकी, हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मोस्ट ऑफ अस वुड हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स इन अवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। और भाई वो एक किताबी एक एकेडमिक है कि जी आपकी करेंसी जब डिवैल्यू होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। पाकिस्तान डजंट एक्सपोर्ट सरप्लस, वी आर नॉट चाइना कि उनका 3-4%, मेरा हमेशा ये वही काउंटर आर्गुमेंट रहा है जनाब चेयरमैन कि 3-4% चाइना जब अपने डिवैल्यू करता है तो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरी एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाते हैं। हमारे तो एक्सपोर्टर ऑर्डर्स लेने के बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी एक्सपोर्ट्स पे करीबन 60 से 65% इंपोर्टेड कंपोनेंट शामिल होता है। तो हमें तो डिवैल्यूएशन सूट ही नहीं करती किसी भी हवाले से। हम करते क्या, व्हाट इज द एक्सपोर्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी? 9% से भी कम। हम 91% इकोनॉमी को तबाह करके रख देते हैं। ये जो बिलीवर हैं जो आके हर वक्त टीवी के ऊपर उस वक्त कहते हैं जी 104 पे हिलने नहीं दे रहा है इसहाक डार 104 पे, आज वो रोते हैं, आज वो गायब हैं सूडो इंटेलेक्चुअल्स। क्योंकि कितनी एक्सपोर्ट बड़ी, नई गवर्नमेंट आई उसने गोला छोड़ दिया, एंड आई डोंट ब्लेम देम। ये नंबर फिर करेक्ट कर दूं, आई थिंक माय ऑनरेबल कॉलीग हैज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। 104 पे मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा और मैंने छोड़ा। 114 और 15 के दरमियान शाहिद खाकान अब्बासी ने छोड़ा, और टू बी फेयर टू द केयर टेकर गवर्नमेंट उन्होंने 144 पे नहीं छोड़ा, उन्होंने 124-50 पे छोड़ा। सो 10 रुपए की डिवैल्यूएशन शाहिद खाकान अब्बासी के ज़माने में हुई, 10 रुपए की डिवैल्यूएशन केयर टेकर, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये उस वक्त केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर 2018 में शमशाद साहिबा। तो 124 से जब वो शूट करके गया तो पहले 3 साल का आप देख लें कि जो छोड़ा उसको उस एकेडमिक थ्योरी और इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की यानी कह लें कि एडवाइस पे, तो फिर उसका हाल क्या हुआ। 3 पहले साल में $800 मिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी 2018, 19, 20, और उसके नतीजे में हमारा लोन्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अबाउट $20 बिलियन का इजाफा हो गया।
1 रुपए से करीबन $100 अरब का पब्लिक डेट का इजाफा होता है। ये जब हमने हुकूमत छोड़ी थी $70 अरब डेट था, जब अगली हुकूमत ने छोड़ा 2022 में तो ये $100 अरब पे डेट है। उस वक्त डेट एंड लाइबिलिटी जो थी वो करीबन 100 बिलियन करीब थी, अब वो $130 बिलियन के करीब है। तो बात यह है कि इसका हल हमें बैठ के ए पॉलिटिकल होकर सोचना चाहिए। ये बिल्कुल तबाही का रास्ता है। अब हमें वापस आते हैं कि सितंबर 2022 में बीबी अब अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए, ठीक है? इफ यू वांट मी टू डिटेल आई कैन एक्सपोज हिम टू द nth degree and you will be ashamed, so don't please interrupt while I'm speaking. जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। बात यह है कि जनाब चेयरमैन, ये हमारी हालत है। वी आर टॉकिंग द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वी हैव सफर्ड, लोग मर गए हैं। इसकी वजह से कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है, दिस फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं करेक्टिव एक्शंस की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आदत है कि हमने हर चीज से सियासत कर रही है। करें ना, लाएं 84 बिलियन, कहां से आपने सेव किया? कॉल द स्टेट बैंक हियर, आई चैलेंज यू कि कितने पैसे हमने इंटरवेंशन किए, कितने पीटीआई में किए। यू विल फाइंड द नंबर इज हायर। यू हैव डन 7 to 8 बिलियन, अब हमारे जमाने में स्टेट बैंक ने 5-5.5 बिलियन की इंटरवेंशन की हैं। यू थिंक कि मुझे नंबर्स ना नहीं पता? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो, प्लीज दिस इज नो वे। जी प्लीज, दिस शुड बी ऑर्डर इन द हाउस। ये हम सारी रवायात को छोड़ रहे हैं। जब लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता था, लोग सुनते थे। जी प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। जी, तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं जनाब चेयरमैन कि पाकिस्तान का ये जो 16 महीने का मामला था, ये मैं आई डोंट वांट टू बी अगेन पॉलिटिकल, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का मामला नहीं था। The international कुव्वतें were up there in their arms using these IFIs to make Pakistan default. आप ये इस नई हुकूमत ने मुआहदे से इनराफ नहीं किया। आई थिंक बेटर आउट ऑफ द हाउस। ये का तरीका बात करने का। मैं आपकी बात हमेशा सुनता हूं। जी प्लीज सेनेटर साहब, आप अपनी बारी पे बात करें। बात ये है कि हमें मिल के, मैं समझता हूं कि बड़ी वाइज बातें हुई हैं। अगर उस पर इंफॉर्मेशन का गैप है, उसको ठीक कर लेना चाहिए, और सही इंफॉर्मेशन के साथ हमें बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इसका एक सोल्यूशन है, और वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आज भी पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, ये मुझे पिछले साल सितंबर 22 में ये 199 था, जब मैं कहता था इसको 200 से नीचे होना चाहिए। मई 2023 में ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान की करेंसी 14% अंडर वैल्यूड है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड IMF के मुआहदा जो नहीं हो रहा था। और उसके नतीजे में जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे में आप कैलकुलेट अगर करें तो 244 से 250 के दरमियान इसकी रियल वैल्यू है। आज भी इट इज अंडर वैल्यूड पाकिस्तान की करेंसी। लेकिन हमें मिलके इसको बिल्कुल टेकअप करना चाहिए। इसको हमें मॉनेटरी पॉलिसी, चूँकि स्टेट बैंक की जिम्मेदारी, जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है वो भी स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। हमारी पिछले 2-3 साल में हमने मादर पिदर आज़ादी दे दी है अपने कुछ अदारों को, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं। ये जो तारीफ कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक तारीफ कर रहे हैं कि अभी कैसे ठीक हुआ है। वही साख डार का फॉर्मूला 98-99, वही साख डार का फॉर्मूला 20-13-14। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपकी C कैटेगरी बंद हुई है, आपकी B कैटेगरी बंद हुई है एक्सचेंज कंपनीज की, आपकी A कैटेगरी रह गई है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। डोंट थिंक ये ऑफ द कफ आ गया। अच्छी बात है, पाकिस्तान वी शुड ऑल सपोर्ट दीज थिंग्स। तो बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की करेंसी अंडर वैल्यूड है और इसको मजीद इम्प्रूव होना चाहिए मेरे नज़दीक। इसकी जो रीढ़ है, वी शुड नेगोशिएट विद इंटरनेशनल अदारास कि जी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द करेंसी वैल्यू।
لیٹس ہیو دیٹ کرنسی ویلیو. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ری ریز اس کا ایک سولوشن ہے. اس کے اوپر انفارمیشن میرے ساتھی بالکل منگوائیں, ہم اکٹھے بیٹھیں اور اس کا ہم حل نکالیں. ادروائز یہ پاکستان کی جو اکنامک تباہی ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا جو میجر اس کا کنٹریبیوٹر ہے وہ ڈیویلیویشن ہے. اور بہت شکریہ.